Hello everyone. As you all know that we are revising the chapters that are going to be coming in your first periodic, right? So as I told you that first two chapters are based on what? Comparison. Okay, comparison of degrees. So it is based on with adjectives and adverbs as well, and we have completed the revision work of that two chapter. Today what we are going to revise is about prepositions. So appropriate prepositions that are used after nouns as well as after verbs. Okay, so these two chapters will be coming along with the first two in your first periodic. So let's start discussing and revising them with the first definition of prepositions. Okay, so you might know and you might remember that prepositions are what? Preposition is a word that links a noun or a pronoun in a sentence, right? So these are the linking words. So they provide the relationship between noun and the other word in the sentence, making the sentence complete. Okay, so this basic definition, this basic information about prepositions we are all familiar with, है ना? हम सभी इस बेसिक डेफिनेशन से बहुत फैमिलियर हैं कि प्रीपोजिशंस क्यों यूज़ होते हैं, ताकि वो एक लिंक बताते हैं, है ना? क्योंकि वहाँ हम जो नाउन यूज़ कर रहे हैं और जो अदर वर्ड यूज़ हो रहा है या वर्ब यूज़ हो रहा है और अदर वर्ड यूज़ हो रहा है, उसके बीच का रिलेशनशिप बताने के लिए प्रीपोजिशंस जो है हम यूज़ करते हैं. So prepositions basically that you have studied in your lower classes up till now are most common one, like in, at, on, before, behind, under, okay, and along. There are plenty of them that you use, which are these are what I could say very common prepositions that you might have studied in your lower classes as well as up till now. Okay, but along with this, since you are in 8th standard, there are plenty of other prepositions exist that can be used after certain actions, after certain nouns as well. Okay, so let us discuss it with the first one, where we will be studying about appropriate preposition after verbs. Okay, this is the third chapter of your syllabus. Okay, so I will be telling you about the most important points that you need to cover up, need to understand and recall while studying or even solving certain exercises. Okay, so let us study about them one by one. Okay, so on page number this is I think 16. Okay, from 16 we will start. So the first point says agree. Okay, you are agree with or on about a thing, agree with the person on or about a thing, agree on something, agree about something, to an idea. When you agree to an idea or suggestion or proposal, this word agree is used with different sentences, with different words. Like here we all agreed on the date. Here agreed on the date, here it is telling us about certain time, date. Okay, he agreed to my plan. Agreed to means here the whatever suggestion or whatever plan has been has been planned. Okay, so that to implement that he agreed on means he said yes to it. So agree, this word, this preposition is used for different purposes, है ना? ये हमें समझना है. I will be taking only the important points, not each and every one. तो आप इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है with respect to your exams as well as future classes also. Okay, so arrive at. Whenever we are arriving at a place, a city or a country, this arrive at is used. So at is what? It's a preposition, and arrive is what? This is your what? A verb. This is an action. Okay, so we arrive at station in time. We arrived in New York. After a long discussion, we arrived at a discussion. तो यहाँ देखिए तीन अलग अलग तरीक़ों से arrive के साथ at, in, at ये बताया गया है. अब at स्टेशन, ये है आपके प्लेस के बारे में. इन न्यूयॉर्क, अगेन अ सिटी.
एट अ डिस्कशन, एक कोई आप बातचीत कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बीच का अराइव, है ना। तो यहाँ डिपेंड कर रहा है कि कौन सा वर्ड, है ना, कौन से सेंटेंस के साथ इम्प्लाई कर रहा है। डिपेंडिंग अपॉन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एक्शन कहाँ काम कर रहा है और उसके साथ लगने वाला प्रिपोजिशन क्या होगा। अग्रीड इन अ डिसीजन, अग्रीड ऑन अ डिसीजन विल बी very inappropriate, है ना। We agreed on a decision, that is totally incorrect. We agreed at a decision, okay, or discussion. Applied to means for either a person or a certain company or an organization. तो ये वर्ड हम अप्लाई करना कहाँ पर यूज़ करते हैं कि जहाँ हमें किसी पर्सन से जाकर उस चीज़ को अप्लाई करने की बात कहनी है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए हमें अप्लाई करना है। सो ही अप्लाइड टू द स्कूल, सो फॉर अप्लाइड हियर टू, यहाँ कौन से अप्लाइड टू, ये क्या बता रहा है आपको, एक स्कूल के लिए ये चीज़ की गई है। फॉर अ स्कॉलरशिप, रीज़न क्या है उसका, किस चीज़ के लिए स्कूल में अप्लाई किया है, फॉर स्कॉलरशिप। तो यहाँ देखिए अलग अलग प्रपोजिशंस हैं एक ही सेंटेंस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने टफ आपको इन 8th स्टैंडर्ड दिया है, मीन्स आप समझ जाइए कि आपको कितनी सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है ना। ये प्रपोजिशंस आपके इन जितने इजी नहीं हैं। एक्सरसाइज में भले ही आपको फ्रॉम, एट, दैट, ऑन ये सब कुछ दिया हो, लेकिन इन पर्टिकुलर एग्जाम्स यू डोंट गेट दिस मच ईजियर। लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी ये बहुत कंफ्यूजिंग साउंड करते हैं, है ना। आपको अप्लाई फॉर, अप्लाइड एट, अप्लाइड टू साउंड कंफ्यूजिंग करते हैं ना। तो आपको ये पढ़ना और समझना ज़रूरी है कि पर्टिकुलरली पर्पस क्या है और कहाँ कर रहे हैं। अप्लाइड टू स्कूल यहाँ, ओके, ये प्लेस। फॉर व्हाट, फॉर स्कॉलरशिप, किस पर्पस के लिए, डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में आपको कौन सा प्रपोजिशन किसकी बात कहाँ यूज़ करना है, ओके। बोरो, सो बोरो फ्रॉम समथिंग, ओके, वी आर बोरोइंग समथिंग फ्रॉम whomever, जिससे भी आप बोरो कर रहे हैं, तो फ्रॉम दिस इज द प्रपोजिशन दैट यू आर गोइंग टू यूज। कंपेयर, when two things are compared, so either compare with और compare to। आपको पता है ना, हम हमेशा कहते हैं this is compared to this is better, है ना। compare to this साड़ी is beautiful, okay। in comparison with the present song, the previous song was much more melodious, okay। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर आपको ये वर्ड कंपेयर जो आएगा, तो आइदर यू आर गोइंग टू यूज टू और विद, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस यू नीड टू फाइंड कि यहाँ पर टू की ज़रूरत है, यहाँ पर विद की ज़रूरत है, ओके। When we are congratulating somebody on something, so whenever you are congratulating, यहाँ पे what we say always, हम क्या कहते हैं, congratulations on your promotion, congratulations on your marriage, right? So on is the preposition that we use for congratulating someone for something, or we are congratulating somebody for something. So on is the preposition that we generally use, okay. Next we have divide into, and divide into two parts, okay. So divide means what, here दो चीज़ों के बीच को आपने क्या किया, डिवाइड किया, अलग अलग कर दिया इक्वल पार्ट्स में। सो हियर बिटवीन और अमंग, ओके, बिटवीन ऑल्सो शोज डिफरेंशिएट बिटवीन, हम बोलते हैं ना डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट। सो ये भी क्या बताता है, एक तरीके का डिविजन। आइडेंटिफाई अमंग दिस मतलब इसमें से। तो ये जो वर्ड्स हैं डिवाइड, बिटवीन, अमंग, इसके लिए हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, फ्रॉम, ओके। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम, जनरली लाइक सी द टीचर divided the class into 5 groups, here it is saying about the breaking the parts, okay। यहाँ डिवीजन हो रहा है इसलिए यहाँ into है, okay। so divide the cake either between और among you। सो आप समझ रहे हैं कि कौन सा प्रपोजिशन आपको यूज़ करना है। जहाँ हम डिफरेंशिएटिंग की कहीं पे भी बात आ रहे हैं तो यहाँ बिटवीन या अमंग, अगर किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ इनटू, ओके, डिवाइड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल थिंग्स, ओके। तो जहाँ आप डिपेंड कर रहा है कि सेंटेंस में आपको क्या पूछा जा रहा है, तभी आप उस पर्टिकुलर प्रपोजिशन
प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर फ्रॉम इज पर्टिकुलरली गिवन कि यहाँ पर फ्रॉम जो है, अगर आप किसी पर्सन के साथ यानी डिवाइड समथिंग फ्रॉम अनादर, किसी और चीज़ के साथ डिवाइड कर रहे हैं तब हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रिक वॉल डिवाइड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम माइन, ओके, मुझसे मेरी प्रॉपर्टीज से ये जो दीवार है वो अलग करती है, ये दीवार की वजह से मेरी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो यहाँ डिपेंड करना है किसके लिए, सेंटेंस पर, ओके, कि आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे। लिसन टू, we always use to as an what here for listen this action, okay, इस वर्ब के लिए हम to इस प्रपोजिशन का यूज करते हैं। look, look after, looking for, looked at, डिपेंड करना है कौन सा प्रपोजिशन। देखिए यहाँ पे मैंने 3 बता दिए, look after, ओके, looking at, ओके, look before, after and before, okay, and listen to, look at, looking for, बहुत सारे हैं, डिपेंड कर रहा है कि आप सेंटेंस में क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर है बेटा, आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि मैम ये कितने सारे वर्ड्स हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बट बिलीव मी जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे डेफिनेटली अगर आपने ये पढ़ा है, ओके, तो आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक होगा, ओके, और जैसे ही वो स्ट्राइक होगा आप समझ जाएंगे सेंटेंस फ्रेम करते वक्त कि ये एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है एंड दिस इज द नॉट, दिस इज नॉट, ओके, दिस वी हैव टू चूज एंड दिस वी हैव not to, okay, this shouldn't be the one that is going to be put up in the sentence, okay, whatever sentence is given, right, so whenever you are having options you will be get striked up कि हाँ यहाँ ये चीज़ यूज़ होगी, ये अप्रोप्रिएट है, ये इनअप्रोप्रिएट है, ओके, सो आप सिर्फ थोड़ा पढ़िए, समझिए कि कौन सा प्रपोजिशन कहाँ यूज़ होगा, क्योंकि सेम मोस्ट ऑफ देम विल बी यूज आफ्टर नाउन्स एज वेल, है ना। कुछ तो ऐसे है कि बिल्कुल नाउन्स के बाद भी यूज़ होगा, तो लेकिन आपके लिए पूछा जाएगा वहाँ कि आफ्टर वर्ड्स आपका वर्ब्स विच पर्टिकुलर प्रपोजिशन विल बी एडेड, आफ्टर नाउन्स व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजिशन शुड बी एडेड, तो क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि वर्ब दे दिया और आपको नाउन के बारे में पूछ रहे हैं और नाउन बता दिया और वर्ब का ढूंढने बोल रहे हैं, नो, definitely questions will be different, okay, so don't get confused. So there are plenty of appropriate prepositions that can be used, but most of them, as you can see in the particular exercise, the prepositions that are used as like at, in, on, for, of, after, from, these are the common that you need to identify. ये आपको सिर्फ समझने के लिए है कि कौन से verb के बाद ये वाले prepositions use होंगे, है ना। तो सिर्फ इतना याद रखिए, जैसे टू वाले हैं तो टू वालों को सेपरेट आउट कर लीजिए, एट वालों को कर लीजिए, इन वालों को कर लीजिए, दिस विल मेक योर वर्क मोर ईजियर, ठीक है, कि कहाँ यूज़ होगा, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको लगता है उसे आप अलग कर दीजिए, इससे ये बहुत ईजी हो जाएगा आपको फाइंड आउट करने के लिए कि हाँ ये इन वाला प्रपोजिशन है ना, ये यहीं लगेगा, एट वाला यहाँ लगेगा, इन ऑन वाला यहाँ लगेगा, आफ्टर, फ्रॉम, फॉर ये वाले यहाँ लगेंगे। सो वर्ब्स के लिए, नाउन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कर लीजिए, तो आपको बहुत इजी जाएगा उसे वापस से एक बार रिकॉल करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए बेस्ड ऑन प्रिपोजिशन, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड, ओके। सो लेट्स सी एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन आफ्टर नाउन्स एज वेल, okay, so noun plus preposition combinations है ये, okay, so see here also arrival, this word is common, in verbs also arrived at, है ना, हमने पढ़ा arrived at पढ़ा था, अभी देखिए यहीं पे arrived at a place, in for city, at a decision। अब यहाँ देखिए arrived at place, arrive in city, it is common for noun as well, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर नाउन्स के बाद भी अगर ये वर्ड अराइवल आ रहा है, अराइवल आ रहा है, तो एक प्लेस के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एट। अगर कोई सिटी मेंशन हो रही है तो आप इन यूज़ करेंगे, लाइक आवर टाइम ऑफ लंडन, आवर टाइम ऑफ अराइवल इन लंडन इज 16 आवर्स, ओके। तो यहाँ इन लंडन बता रहा है एक सिटी के बारे में, है ना। आप एक कोई जगह के बारे में बात कर रहे हैं, कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, एक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट हो जाएगा, ओके। एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में से हमने स्टेशन कहा था तो एट स्टेशन था, है ना, वहाँ इन स्टेशन था क्या, नहीं था। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ
place and a city and a country. Okay, that you need to understand. So at कहाँ use होगा? For arrival at a place. Okay, if it is related with the city or a country, in preposition will be used with the word arrival. Okay, when you are giving an attention to a person or a thing, so after the word attention, to is the preposition that is going to be used. Like, will you pay attention to my words? You must pay attention to the teacher. See, attention to, this to is a preposition that is used after the word attention. Okay, so this is quite easy. Just you need to focus on what has been given and what is the question asking to you. Okay, competition with. Now, competition with a person, for a thing, and between two persons or organization. This word competition is different for different पर्सपेक्टिव. अब देखिए, कोई कंपटीशन हो रहा है किसी पर्सन के साथ, तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, विथ लगाएंगे. कंपटीशन विद अ पर्सन, देयर इज अ कंपटीशन विद अ पर्सन इज गोइंग ऑन. ओके, व्हेन दिस वर्ड कंपटीशन इज फॉर अ थिंग, सो वी विल से like what we could say, we will compete for the prize. Okay, we will compete for the prize. अब किसी चीज़ के बारे में आप कर रहे हैं, तो ये compete वर्ड किसके साथ यूज हो रहा है, for के साथ. Okay, if it is between two persons or organization, like there is a competition between two boys, there is a competition between. So it depends कि ये word competition किसके साथ आ रहा है, पर्सन के साथ, बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अ थिंग. तो अगर किसी पर्सन के साथ है तो विद, अगर किसी थिंग के लिए है तो टू, सॉरी फॉर, एंड इफ इट इज बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन और टू पर्सन्स, ओके, देन वी यूज बिटवीन एज एन प्रीपोजिशन. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको समझना, जो मेरे पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझा रही हूँ, कि जो पॉइंट्स मुझे डिफ़िकल्ट या फिर इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. अदर दैन दैट यू नीड टू एटलीस्ट रीड इट वंस. ओके, फॉर योर नॉलेज, आप अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ेंगे ज़रूर. डिफ़िकल्टी इन डूइंग समथिंग, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, डिफ़िकल्टी इन कंप्लीटिंग द होमवर्क, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग, है ना. तो डिपेंड कर रहा है डिफ़िकल्टी के बाद कौन सा वर्ड आपका दिया है, वहाँ पर आप इन एज अ प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगे. अब यहाँ देखिए, डिस्कशन के लिए भी हमने एक वर्ड देखा था, एट डिस्कशन, अबाउट डिस्कशन, ऑन डिस्कशन. तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं. वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट द प्रॉब्लम. ऑन द प्रॉब्लम लिखेंगे क्या, नो, ऑन विल बी इनएप्रोप्रिएट. एट द प्रॉब्लम, इनएप्रोप्रिएट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, सो डिस्कशन वॉज अबाउट द प्रॉब्लम. Okay, here discussion on whatever discussion or you know, एक हम बोलते हैं ना, विचारों का आदान प्रदान, जो आप एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, सिर्फ अपना व्यू रखते हैं, तो वो डिस्कशन ऑन समथिंग इज गोइंग ऑन. whether I had a long discussion on Indian politics, whether I had a long discussion on my personal life, or I had a long discussion, a very short discussion on particularly what to say on that occasion. So डिपेंड कि आप कौन से डिस्कशन के लिए बात कर रहे हैं, कौन सा डिस्कशन आप वहाँ शो कर रहे हैं. लाइकवाइज हियर यू हैव फेलियर, इफेक्ट, फाइन, होप. सो दिस, यहाँ आपको देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस दिखेंगे जो कि पर्टिकुलरली आप एक नाउन के बाद यूज़ करते हैं. तो कॉमन कहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ एक्सरसाइज में. यूज़ क्या करना है, देखिए, अबाउट, एट, बिटवीन, फॉर, इन, ऑफ, एंड, ओवर, ऑन, टू, एंड विद. सो यहाँ प्रीपोजिशंस विल बी द सेम. ओके, यहाँ प्रीपोजिशन जो मैंने लिखे हैं वही सेम है, सिर्फ आपको समझना है कि कहाँ कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा है. ओके, सो ऑप्शंस ऑलवेज विल बी देयर, बट टू चूज देम वाइजली, टू चूज देम करेक्टली, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट. ओके, तो यहाँ देखिए, रीज़न फॉर समथिंग. जब आप किसी चीज़ का रीज़न दे रहे होते हैं तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन फॉर. ओके, वहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, फॉर. अब आप रिक्वेस्ट फॉर बोलेंगे क्या, नहीं, वहाँ रिक्वेस्ट के लिए क्या आएगा, टू. आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, यू आर रिक्वेस्टेड टू. तो रिक्वेस्ट के बाद ही कौन सा प्रीपोजिशन आता
sympathy for, my sympathy is with you. So if it is for someone, so you can use the preposition for. If it is with someone, where we use with. My sympathies are with you, my sympathy is for the soldiers. ओके, सो डिपेंड कि सेंटेंस में आप क्या पूछ रहे हैं या क्या बताना चाहते हैं. ओके, तो यहाँ पर दोनों ही प्रीपोजिशंस बहुत ही एप्रोप्रिएट है. सो आई होप कि ये बहुत ही हेल्पफुल था. एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक. ओके, यू डोंट नीड टू एक्सप्लोर मोर. यही बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं और ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोस भी प्रोवाइड किए हैं, है ना, जो आप देख चुके हैं. तो आपके पास अगर वो लिंक है तो उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने उस टाइम पे आपको कौन से प्रीपोजिशन आफ्टर नाउन एंड आफ्टर वर्ब्स जो है वो पढ़ाए हैं. दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एज आई सेड, प्रैक्टिस more and more related to the preposition exercises. That will definitely going to help you in the examinations. Okay, good day students, take care.